Hello, everybody, and welcome to the fifth lecture of Computer Applications for Class 9th and Class 10th ICSE. Before proceeding with this lecture, make sure that you have watched all the previous lectures that have been uploaded for this course. There is a separate playlist on my playlist section named Computer Applications. In that playlist, you will find all the lectures in a proper sequence. So you should not find any difficulty in looking for a particular lecture. Now, in this lecture, we are going to discuss operators in Java. The topic operators in Java is a very vast topic, and we will not cover all the operators in Java in one single lecture. We will divide this topic into several lectures. So in my upcoming lectures, I will discuss more on operators in Java. There are various operators. We will discuss all of these operators gradually. We will break it into several lectures. Now, in this lecture, we will discuss about two types of operators: unary operators and binary operators. Okay, and also we will see the examples of unary operators and binary operators. Okay. Now, if you can recall, in the previous lecture, I had discussed about tokens in Java. And under this topic, I had named 5 tokens. And among those 5 tokens, I have discussed 4 tokens. And I told that the 5th token, which is operators, I will discuss in the coming videos. So here you should know that operators, when I say operators, it is actually a token in Java. So each kind of operator is a token in itself, and it belongs to which token? Each operator is a token. Okay. Now, what do we mean by operators? First of all, let us define operators. Okay. So let us write down the definition of operator. Or you can say operators are specialized symbols that perform a specific kind of evaluation evaluation means operation. So in bracket, we are writing operation on one or more operands, on one or more operands, and produce a result. So this is the definition of operators. Now, let me tell you once again that you should carry a notebook and a pen. You should take down the notes. These notes are going to be extremely helpful for your exams and boards as well. Operators are specialized symbols. कुछ special symbols होते हैं. क्या करते हैं ये symbols? They perform a specific kind of evaluation or operation. एक specific काम operation को करते हैं. किस पर operate करते हैं? On one or more operands. एक या एक से ज्यादा operands पर operate करते हैं. कौन operate करते हैं? Operators operate करते हैं. किस पर करते हैं? Operands पर. और क्या produce करते हैं? एक result. एकदम simple example से समझते हैं. This plus symbol is an operator. It is known as arithmetic operator. Arithmetic operator. मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है और सभी लोगों को पता है कि प्लस से हम अरिथमेटिक एडिशन करते हैं. इफ आई राइट 2 + 3, this will produce the result 5. Now here this plus is the specialized symbol. That means the symbol is that operator. So this plus sign is the operator. It is an arithmetic operator. Now, what are these numbers 2 and 3 known as? These numbers 2 and 3 are known as operands. यही वो नंबर्स है जिन पर ये ऑपरेटर ने ऑपरेट किया. 2 और 3 पर ऑपरेट किया यानी इवैल्यूएशन किया, तो वो हमारे ऑपरेंड्स हो गए. 2 and 3 are operands, plus is operator, and this 5 is the result. The result with
the result which is produced after this operation got executed. So if you see, now the definition is very easy to understand. Operators are specialized symbols that perform a special kind of or a specific kind of evaluation or operation. ये जो हमने addition किया, ये addition ही है वो operation. What is that operation? Here we have done, in this example we have done addition of two numbers. This is the evaluation or this is the operation. कहां पे ऑपरेट हुआ? ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स. हमारे इस एग्जांपल में कितने ऑपरेंड्स हैं? वी हैव 2 + 3, so this arithmetic operator is operating on 2 operands. तो एक से ज्यादा ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, और वन ऑपरेंड का मैं आगे एग्जांपल दूंगा कि वन ऑपरेंड कैसे होगा. अभी तो हमने मोर देन वन ऑपरेंड का देख लिया, 2 and 3, वी हैव 2 ऑपरेंड्स हियर, एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट प्रोड्यूस किया. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में, जहां पे हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे ऑपरेटर्स को. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. Here on broad classification we will have two types: unary operators and binary operators. ठीक है, the name says everything. The name has the definition. Unary, you know that unary means one, binary relates to two. Okay, so unary operators are those operators which act on one operand or a single operand. So इसका लिखेंगे unary operators का definition: operators that operate on a single operand, on a single operand. भाई ये कैसे हो सकता है? अभी समझाऊंगा कि सिंगल ऑपरेंड पर कैसे ऑपरेटर्स एक्ट करेंगे. ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर्स. इसके एग्जाम्पल लिख लो: इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. I will explain in detail in this lecture only about increment and decrement operators. So you don't worry, it's going to be crystal clear. Now, binary operators, as the name says, operators that operate on two operands. Binary का मतलब ही two होता है, तो दो operands होने चाहिए. On two operands are known as binary operators. इसका एग्जाम्पल तो मैंने अभी यहां पे समझाया. ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये जो प्लस साइन है, वो दो ऑपरेटर्स पर ऑपरेट किया, सॉरी दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट किया, दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेट किया. तो हमारे कितने ऑपरेंड्स है? दो. जब दो ऑपरेंड्स हो तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर. यानी हमारा ये जो एरिथमेटिक एंड है, एरिथमेटिक एंड ये प्लस ऑपरेटर है, अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर है, वो एक बाइनरी ऑपरेटर. यू कैन सिंपली राइट प्लस, you can say minus also, you can say like 3 minus 2. So this minus sign is also acting on two different operands. You can say multiplication, you can say division. No, okay, and you can say this division. I will explain. This is also division. In maths we call it percent ka sign, no, but in Java, no, this is not percent. Percent से इसका कोई लेना देना नहीं है. This symbol is known as modulus division. I will explain it. तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो सिंपल ये एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन करता है. ये सब्ट्रैक्शन करता है, वी ऑल नो. ये जावा में मल्टीप्लिकेशन करता है, एस्टरिस्क साइन ही यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. ये स्लैश जो है ये डिवीजन करता है, नॉर्मल डिवीजन. दिस साइन जो डिवीजन साइन होता है मैथ्स में, दिस इज नॉट देयर इन जावा. Even by mistake, do not use this symbol of division. Division करना है मुझे 4 divided by 2, तो मैं जावा में 4 divided by ऐसा नहीं लिखूंगा, 4 divided by 2. Java compiler will not understand this thing. I have to write 4 divided by 2 like this. This is how Java will understand. ऐसा भी नहीं लिखूंगा. This also has no meaning to Java compiler. So division का मतलब सिर्फ स्लैश. अच्छा, अब मैंने ये कौन सा डिवीजन लिख दिया? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस डिवीजन.
मॉड्यूलस डिवीजन, ठीक है। तो मैं इस पे अभी डिस्कशन करूंगा। तो हमने सबसे पहले तो यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स का डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स लिख लिए हैं। नाउ आई विल कम टू दीज ऑपरेटर्स, स्पेशली दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर, आफ्टर सम टाइम। मैं आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये यूनरी ऑपरेटर्स को मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं यूनरी ऑपरेटर का जो एग्जांपल हमने लिखा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको समझते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देखो इसको समझने के लिए काफी ज्यादा ध्यान से तुम्हें समझना है, क्योंकि यहां पे बहुत कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझ में तभी आएंगी जब तुम पूरा अटेंशन पे करोगे। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। अब समझने की कोशिश करो कुछ चीजें। देखो, अगर सपोज ए का वैल्यू 5 है, ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू 5 है, और मैंने लिखा ए प्लस प्लस। ये जो मैंने लिखा ए प्लस प्लस सेमीकोलन, ये जो प्लस प्लस लिखा, ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये ए का वैल्यू को एक बार इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसा कोई भी ऑपरेटर हमारे मैथमेटिक्स में नहीं है, मैथ्स में नहीं है। कभी भी हम दो प्लस प्लस ऐसा मैथ्स में नहीं लिखते हैं, कभी देखे हो? मैथ्स में नहीं लिखते हैं। ये बिल्कुल नया है, और एक नए चीज से तुम वाकिफ हो रहे हो, तो इसे एक्सेप्ट करो, समझने की कोशिश करो। मैं जब भी बोल रहा हूं ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू एक बार बढ़ गया। जैसे ही ये कोड आ जाएगा, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ए माय डियर? व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ए? पहले ए के इस कोड में जब थे हम, ए का वैल्यू था 5, ठीक है। ये मान लो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है, ए का वैल्यू था 5, ये इस कोड में। अब जैसे ही कंपाइलर उसके नेक्स्ट कोड में आया, ए प्लस प्लस दिख गया। तो ए प्लस प्लस का मतलब ए का वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट कर दो। तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ए? ए विल बिकम 6 इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, इन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। तो अभी ए का वैल्यू 6 है। फिर से अगर मैं इसके नीचे अगर मैं लिखता हूं ए प्लस प्लस, तो ए का वैल्यू फिर एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा 7। तो ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट हो रहा है। ये प्लस प्लस जो मैं लिख रहा हूं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर ए माइनस माइनस, तो अभी तो ए का वैल्यू इस कोड के बाद 7 हो गया था ना, पहले 5 था, फिर मैंने ए प्लस प्लस किया तो 6 हो गया, फिर ए प्लस प्लस किया तो 7 हो गया। अभी है ए माइनस माइनस। कंपाइलर जब इस कोड में आएगा तो ए का वैल्यू एक बार डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो फ्रॉम 7 इट विल गो बैक टू 6 अगेन। सो राइट नाउ, आफ्टर this code has been executed, a minus minus code is executed, the value of a is 6। तो ये बहुत सिंपल है समझना। a प्लस प्लस मतलब एक बार इंक्रीमेंट करो, a माइनस माइनस मतलब एक बार डिक्रीमेंट करो। सिमिलरली कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं a ही लूं। मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, ये a जो है एक वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ रूल्स हैं, आइडेंटिफायर नेम्स लिखने के रूल्स हैं। वो रूल्स को फॉलो करके हम कुछ भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हैं और कर सकते हैं। सपोज आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल नेम्ड नंबर, तो मैं नंबर, ये वर्ड ही एक वेरिएबल है, नंबर इज इक्वल टू 5, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं नंबर प्लस प्लस सेमीकोलन, यानी अभी नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा। पहले 5 था, अभी 6 हो जाएगा। और फिर से मैं अगर लिखूं नंबर माइनस माइनस सेमीकोलन, तो यहां तो वो 6 हो गया था, लेकिन अब फिर डिक्रीमेंट होके वापस से 5 हो जाएगा। फ्रॉम 6 इट विल अगेन गो बैक टू 5। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ अभी यहां पे मैंने डिस्कस किया पोस्ट फिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है, ये दोनों ऑपरेटर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? नाउ सी, you have understood a plus plus, you have understood a minus minus. Now there is a thing known as plus plus a and minus minus a. अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। मैं लिख रहा हूं a प्लस प्लस, इसमें मैंने बोला कि एक बार a का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूं प्लस प्लस a बोल के भी एक चीज होती है। अगर मैं लिखूं प्लस प्लस a, तो क्या होगा? तो भी
ए का वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें भी ए का वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं माइनस माइनस ए, इसमें भी ए का वैल्यू एक बार डिक्रीमेंट हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा तो सर डिफरेंस क्या है? अगर ए प्लस प्लस में भी ए का वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है और प्लस प्लस ए में भी ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है एक बार, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए? इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर क्या डिफरेंस है, आपने तो बोला कि सेम। देखो तुम्हें अभी भी लगेगा सेम। एक एग्जांपल मैं देता हूं। इफ आई राइट इंट a इज इक्वल टू 5, तो सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a जिसका डेटा टाइप इंट है, और उसमें मैंने एक इंटीजर स्टोर किया 5 a में स्टोर किया। एक बार मैं इस कोड को फिर बताता हूं। a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल में मैंने 5 को स्टोर किया, और उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है क्योंकि इसमें मैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं। 5 इज एन इंटीजर। अब मैं अगर लिखता हूं a प्लस प्लस, तो a का तो ओरिजिनल वैल्यू 5 था, लेकिन जैसे ही कंपाइलर a प्लस प्लस में आया 5 से वो 6 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस a, तो मैंने अभी बोला था कि इसमें भी सेम चीज होगी, एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो व्हेन द कंपाइलर कम्स हियर इट बिकम्स 7, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगेन वो डाउट अभी भी तुम्हारे मन में है, सर डिफरेंस क्या है? सेम चीज तो हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं लिखता हूं a माइनस माइनस, तो वापस से ये अभी 7 था, ये 6 हो जाएगा। और मैं अगर लिखता हूं माइनस माइनस ए, फिर से एक बार डिक्रीज हो जाएगा 5। तो अगर a माइनस माइनस में और माइनस माइनस ए में सेम आउटपुट आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? अभी मैं डिफरेंस पे आता हूं, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन हर साल इस पर तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं। और ये 9th लेवल एग्जाम्स में, 9th के बच्चों के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है समझना। अब देखो, सबसे पहले तो हम इस नाम का मीनिंग समझ लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं a प्लस प्लस, मतलब हमारा ऑपरेटर यानी प्लस प्लस अगर हमारे वेरिएबल के बाद है, वेरिएबल मींस a के बाद मैं अगर प्लस प्लस लिख रहा हूं, सो वी विल कॉल इट पोस्ट फिक्स। मतलब पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। तो मैं फिक्स कर रहा हूं वैल्यू बाद में। मैं अगर a प्लस प्लस लिख रहा हूं, तो ये मैं बाद में फिक्स कर रहा हूं, प्लस प्लस हमारा a के बाद है, सो दिस इज पोस्ट फिक्स। और ये इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्या कहेंगे? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए, तो हम ऑपरेटर को लिख रहे हैं, प्लस प्लस इज रिटन बिफोर ए, तो वेरिएबल बाद में है, प्लस प्लस पहले है, तो इसे हम कहेंगे प्री फिक्स। मैंने पहले फिक्स किया, उसके बाद वेरिएबल लिखा, प्री फिक्स। ये भी इंक्रीमेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा प्री फिक्स इंक्रीमेंट। अगर मैं लिखता हूं a माइनस माइनस, इसका नाम हो जाएगा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। क्योंकि पोस्ट फिक्स क्यों? क्योंकि बाद में कर रहा हूं, और डिक्रीमेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। और मैं लिखता हूं माइनस माइनस a, इसका नाम है, इस ऑपरेशन का नाम है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। पहले मैं प्री मतलब पहले साइन यूज किया, ऑपरेटर यूज किया, फिर वेरिएबल है प्रीफिक्स, और डिक्रीमेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है एक बार। सो प्रीफिक्स डिक्रीज, दीज आर द नेम्स ऑफ द ऑपरेशंस। इस ऑपरेशन का नाम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, इसका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इसका पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इसका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। अब तो नाम हमें क्लियर हो गया, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स वर्ड क्लियर हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गया, बस नाम ही क्लियर हुआ है। और इसका एक कॉमन टाइप का जो ऑपरेशन है वो समझ में आया। डिफरेंस अभी भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ। अब तुम्हें जितना ध्यान से तुम इसको देख रहे थे, उससे डबल ध्यान देना पड़ेगा, डबल अटेंशन पे करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखो अभी मैं लिखता हूं, एक सिंपल सा चीज लिखते हैं। सपोज इंट a इज इक्वल टू 5, और मैं लिख रहा हूं इंट c इज इक्वल टू a प्लस 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 a, और सेमीकोलन दे दिया। इस एग्जांपल से चलो समझते हैं कि कैसे काम करेगा, c का क्या वैल्यू होगा, इसमें c का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये हम निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, इसका कैसे मैं इसका एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, किस तरह से। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया ताकि तुम्हारा आंख उस लाइन पर ही रहे। द लाइन दिस कोड, इस कोड को देखो जहां पे मैंने एरो ड्रॉ किया है, वहीं पे देखो। तो कंपाइलर जब उस लाइन में आएगा तो क्या क्रिएट होगा?
एक वेरिएबल क्रिएट होगा कंप्यूटर के मेमोरी में, कंपाइलर क्रिएट करेगा, ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 5। तो मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ 5, कोई डाउट नहीं। ये लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया, कंपाइलर अब नीचे वाले लाइन में आ गया। अभी हम एरो नीचे ला देते हैं। नाउ द कंपाइलर इज इन दिस लाइन ऑफ कोड, सी इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए। अब सी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका भी डेटा टाइप इंट है। सी ये मेमोरी में क्रिएट हुआ, सी नाम का एक वेरिएबल। अब उसमें क्या स्टोर होगा, अब ध्यान से कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस प्लस है, अगर ये पोस्ट फिक्स है, क्योंकि बाद में है ना प्लस प्लस, पोस्ट फिक्स है, तो मैं यहां पर एक्सप्रेशन के नीचे ए का जो वैल्यू है उसको लिखूंगा और मेमोरी में इंक्रीमेंट करूंगा। देखो समझ में आएगा, कुछ एक दो और एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। ए का वैल्यू क्या है, 5, तो मैं यहां 5 लिखूंगा और उसके बाद प्लस प्लस है, तो 5 यहां लिखने के बाद प्लस प्लस होगा, मतलब 5 से वो 6 बनेगा, वो मेमोरी में बनेगा, यानी 5 से ये 6 बन गया। लेकिन मैंने यहां पे 6 नहीं लिखा, यहां पे मैंने 5 ही लिखा, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में पहले लिखा जाता है एक्सप्रेशन का वैल्यू और फिर उस पर उसका वैल्यू चेंज होता है मेमोरी में। तो यहां ए प्लस प्लस था, मैंने ए का 5 लिख दिया, प्लस प्लस आया तो मेमोरी में ये 5 से 6 हो गया। उसके बाद यहां पे अभी ए का वैल्यू 6 है, ठीक है, दिख रहा है ए का वैल्यू अभी 6 है। अभी यहां पर ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन मैंने यहां लिख दिया। अब प्लस प्लस ए, अभी पहले इंक्रीमेंट करो फिर ए का वैल्यू लिखो, यहां पर पहले इंक्रीमेंट करो मेमोरी में, तो अभी ए का वैल्यू 6 है तो इंक्रीमेंट करके वो 7 बन गया। तो अभी मैंने पहले इंक्रीमेंट किया, 7 बना दिया, उसके बाद ए का वैल्यू लिखो, मतलब 7 को लिखो, तो 5 प्लस 7 12 इज द आंसर। दैट मीन्स सी का वैल्यू 12 है। तो अभी मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन सी, 12 है सी का वैल्यू। कैसे मैंने किया, इस तरह से किया। एक बार मैं फिर से देख लो कि अगर वो पोस्ट फिक्स है तो हम पहले उसका वैल्यू लिखते हैं, फिर उसे हम फिक्स करते हैं, फिक्स करना मतलब उसके वैल्यू को चेंज करते हैं मेमोरी में। और अगर प्री फिक्स है तो पहले हम फिक्स करते हैं, पहले हम मेमोरी में उसका वैल्यू चेंज करते हैं, फिर हम लिखते हैं। चलो एक आध एग्जांपल और करेंगे, काफी सारा, तब तुम्हें क्लियर होगा। और इस तरह के बोर्ड्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे, इसमें काफी सारा मेरे पास बोर्ड्स के क्वेश्चन है, मैंने कलेक्ट किया है, तो आज कुछ करेंगे और आगे के वीडियोस में भी हम लोग करेंगे। नाउ लेट मी डिस्कस अ क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। इंट b इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 है। उसके बाद इंट a इज इक्वल टू b प्लस 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 b माइनस माइनस प्लस 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 b प्लस माइनस माइनस b प्लस b। चलो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करेंगे, काफी टर्म्स हमने लिख दिया इसी में ऑलरेडी, इसको समझते हैं। अब मैं बोला कि बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ यू सी, b का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2 है। b का ओरिजिनल वैल्यू जब कंपाइलर इस कोड में आया तो b का वैल्यू 2 उसने क्रिएट किया, b नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें 2 को स्टोर कर दिया। उसके बाद कंपाइलर इस सेकेंड वाले लाइन में आ जाएगा, सेकेंड वाले में आया, अब क्या है, इंट a इज इक्वल टू, तो a एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, अब उसका क्या वैल्यू होगा, देखो वर्किंग देखो, यहां पे मैं b प्लस प्लस है, तो क्या मैं पहले फिक्स करूंगा कि मैं पहले b का वैल्यू लिखूंगा, तो यस पहले मैं b का वैल्यू लिखूंगा। b का वैल्यू क्या है, देख लो 2 है, तो 2 लिख दिया, और फिर प्लस प्लस है, मतलब एक बार इंक्रीमेंट कर दो, तो b का अभी वैल्यू 2 से क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा मेमोरी में, यहां पे 3 नहीं लिखा, अभी b का वैल्यू 3 है। उसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस, अब है b माइनस माइनस, सो अगेन इट इज पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, मतलब पहले b का वैल्यू लिख दो, तो b का वैल्यू क्या है, अभी 3 है, और उसके बाद माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मतलब एक बार डिक्रीज हो जाएगा, फिर से ये 2 बन गया, 3 से डिक्रीज होके 2 हो गया। अभी b का वैल्यू हमारा 2 है। नाउ यू हैव दिस प्लस साइन, प्लस 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 b, पहले इंक्रीमेंट करो फिर लिखो, पहले इंक्रीमेंट करो,
तो बी का वैल्यू इंक्रीमेंट एक बार कर दिया 3, उसके बाद मैंने यहां 3 लिखा, अभी बी का वैल्यू 3 है। उसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस बी, पहले डिक्रीमेंट करो क्योंकि प्रीफिक्स है, तो एक माइनस है, तो एक बार ये 3 से 2 में चला जाएगा, फिर मैं इस बी को यहां लिखूंगा 2। उसके बाद प्लस बी, बी का क्या वैल्यू है अभी 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर 12 है। तो कोइंसिडेंटली इसका भी आंसर 12 आया, हालांकि मैंने सोच के नहीं किया था कि 12 इसको लाना है, ये कोइंसिडेंट है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 12 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन, या प्लस, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप द स्टेप्स आर क्लियर, crystal clear now. Yes, now we move to the next question. Okay, so अब एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईसीएसई 2015 का क्वेश्चन है। चलो लिखते हैं, int y is equal to 10. Okay, int z is equal to, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस प्लस y इंटू, मल्टीप्लाई किया हुआ है, इंटू, फिर ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट में y प्लस 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 5, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये आउटर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एक चीज बता दूं कि मैथ्स में क्या होता है ना, जब हम एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट यूज करते हैं, तो हम, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। एक ब्रैकेट के अंदर जब हम दूसरे ब्रैकेट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है 2 + 3 ये ब्रैकेट में, और फिर 4 प्लस ऐसे है, और इसे मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा, और इसके बाहर भी अगर कुछ नंबर्स हैं जैसे +9, तो इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। यहाँ पे मान लो कि मल्टीप्लाई भी है, इंटू 9, कुछ भी है, तो हमने एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट, उसके अंदर एक ब्रैकेट, ऐसा अगर मैथ्स में है तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, द स्क्वायर वन, द कर्ली वन एंड द राउंड वन। बट इन मैथ्स, बट इन जावा वी डोंट यूज these 3 types of brackets when we enclose a bracket inside another bracket. कर्ली ब्रैकेट का यूज अलग है जावा में, जब हम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं तो हम इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी मान लो कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्लास का नाम मान लो फर्स्ट है, तो उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम एक ब्लॉक क्रिएट किए, क्लास का ब्लॉक, उसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। ठीक है, तो पर्पस अलग है कर्ली ब्रेसेस का। जब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर है, इफ यू सी वी हैव यूज्ड राउंड ब्रेसेस ओनली, राउंड ब्रेस, आउटर ब्रेस भी राउंड ब्रेसेस है, और इनर ब्रैकेट भी राउंड ब्रेसेस ही है। तो इस तरह से सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स ही यूज होते हैं जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं जावा में। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन मैथ्स के तरह ही हम इनर ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मैथ्स में भी वही करते हैं, इनर ब्रैकेट इज सॉल्व फर्स्ट। ओके, नाउ इफ यू सी, हमें z का वैल्यू निकालना है, राइट डाउन द फुल क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। दिस इज एन ICSE क्वेश्चन which came in 2015. If you see, it's very simple. अब मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, अगर वो पूरी तरह से अच्छी तरह समझ गए हो तो ये करना बहुत आसान है। चलो हम रफ में करेंगे, ये इसका जो ड्राई रन बोलते हैं, जो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसका जो वर्किंग एक्सप्लेनेशन या जो वर्किंग मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ड्राई रन। मतलब मैं रन कर रहा हूँ लेकिन मशीन में नहीं, तो ड्राई रन नोटबुक में कर रहा हूँ। तो कंपाइलर अभी इस फर्स्ट कोड में आया, int y इज इक्वल टू 10, तो y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू 10 है, बहुत सिंपल है। तो y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका वैल्यू 10 है। नेक्स्ट कोड में आया int z इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, तो सबसे पहले तो z नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर आप देखते हैं क्या है। अब देखो इसको एक बार मैं लिख लेता हूं रफ में, यहाँ पे सोल्यूशन में, z इज इक्वल टू प्लस प्लस y इंटू वाई प्लस 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 5 ब्रैकेट ब्रैकेट सेमीकोलन। इसके लिए ऐसा करने से मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू प्लस प्लस y, बताओ मैं पहले इंक्रीमेंट करूंगा कि पहले मैं y का वैल्यू लिख दूं? अभी मैं सुन पा रहा हूं, बोलो। प्लस प्लस y, पहले प्लस प्लस है, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, दैट मीन्स 10 से 11 बनाओ, उसके बाद y लिखो, y का वैल्यू भी 11 हो गया, इनटू
ब्रैकेट y प्लस प्लस, अभी y का जो वैल्यू है उसे लिख दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो क्योंकि प्लस प्लस बाद में है। तो y का अभी ओरिजिनल अभी क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू 11, तो मैंने 11 लिख दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट करो, उसके बाद इसे 12 बनाओ और फिर है +5। कितना सिंपल है। z इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 11 इंटू, अब 11 + 5 16 अंदर में, क्योंकि अंदर का ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट विल evaluate first, so we have got 11 + 16, 11 into 16, and when you solve this you will get 176. So 11 into 16 is 176. This is the answer. Okay, now we move to the next question. Now before I proceed to the next question, I wanted to tell you one thing over here. If you see यूनरी ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल में मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है, और बाइनरी ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स में मैंने एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस डिवीजन, ये सारे लिखे। लेकिन ये जो एडिशन है, ये जो माइनस है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो डिवीजन है, ये जो मॉड्यूलस डिवीजन है, इन्हें मैं यूनरी ऑपरेटर के तरह भी यूज कर सकता हूं। यस, I can write them as a unary operator also. Now, how? In Java only it is allowed. In normal maths, it is not allowed. Now, you see. Suppose I have A is equal to A plus 3. ऐसा मैं लिख रहा हूं, A is equal to A plus 3. अच्छा, अगर मान लो A का वैल्यू है 5, ऐसा है। Look at this code, all of you. int a is equal to 5 और उसके नीचे लिखा हुआ है a is equal to a plus 3। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट कोड है int a is equal to 5, दूसरा कोड है a is equal to a plus 3। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले जावा इस कोड में आएगा, फर्स्ट कोड में int a is equal to 5, a का ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो 5 a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आएगा, अब है a इज इक्वल टू a प्लस 3। इसका मतलब है a का जो न्यू वैल्यू है, क्योंकि a इज इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू a का जो ओल्ड वैल्यू प्लस 3, तो दिस विल गिव यू a का न्यू वैल्यू। सो a's वैल्यू विल गेट अपडेटेड, हाउ? a विल बी a प्लस 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 और उसके साथ 3 ऐड हो जाएगा तो 8, मतलब अभी a का जो नया वैल्यू है वो 8 है। इस एक्सप्रेशन के बाद 8 जाके स्टोर हो जाएगा a में, इसलिए मैंने यहां पे मेमोरी में 5 से वो 8 में चेंज हो जाएगा। ये एक चीज हुई। सिमिलरली एक और देख लेते हैं। सपोज यू हैव इंट num एक वेरिएबल है, num इज इक्वल टू 6, और मैं लिखता हूं num इज इक्वल टू num इंटू 3। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले इस कोड में आएगा कंपाइलर int num इज इक्वल टू 3, तो num नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसका वैल्यू 6 है, तो 6 असाइन हो गया num में, 6 लिख दिया मैंने यहां पे। नेक्स्ट कोड में आएगा num is equal to num into 3, means the new value of num is equal to the old value of num into 3। तो old value of num क्या था? 6 था, तो 6 into 3, 18। 18 will be stored now in num। अभी num का नया वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। 6 into 3, 18। So this is how you have to understand this thing। एक चीज और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें मैं बोल रहा हूं। अगर हम int a इक्वल्स टू 5 लिखे हैं, मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है a, उसका डेटा टाइप है int, और उसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया 5। दूसरे सेंटेंस में मैंने int a नहीं लिखा, आई हैव जस्ट रिटन a, बिकॉज मैंने a को एक बार int a लिख दिया है, मतलब एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया है। If I write like this, int a is equal to 5, and then again if I write int a is equal to a plus 3, this is error, syntax error।
सेम ही वेरिएबल को, ए ही है ना ये, a particular variable needs to be declared only once in a program, or you can say in a given block. एक ही बार एक ब्लॉक में हम उसे डिक्लेयर करेंगे, दो बार नहीं, ठीक है। तो ए को तो मैंने एक बार इंट ए करके डिक्लेयर कर दिया, यू नो व्हेन आई राइट इंट ए, दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। ये सब मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, लेकिन इस टॉपिक में भी मुझे हल्का सा इसे टच करना है, इसे समझ लो। मैं आगे जब मैं कैसे वेरिएबल्स हम लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट में आऊंगा, तब मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं जब लिख रहा हूं इंट ए, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, एक ही बार हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये सेकेंड टाइम मैं इंट ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो डिक्लेयर हो गया है कि ए का डेटा टाइप इंट है, ये डिक्लेयर हो गया, तो सिर्फ ए लिखूंगा। जैसे कि मैंने यहां पे भी देखो इंट नाम लिखा है एक बार, दूसरे बार मैंने इंट नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ नाम लिखा है। हाँ, अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल यूज करूं तब मुझे उसे फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट लगा के, या कोई भी डेटा टाइप फ्लोट हो, डबल हो, जो हम वैल्यू को स्टोर करेंगे उस हिसाब से। बट एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर करेंगे। ओके, नाउ ये सब चीज हो गई। अब आते हैं कि इस एरिथमेटिक ऑपरेटर को जो हमने यूज किया यहां पे, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर तो बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेंड्स है, ए इज एन ऑपरेंड, 3 is an operand, so we have two operands here, two operands here, so it is a binary operator, so this is definitely a binary operator। और इसमें तुम्हें डाउट भी नहीं होनी चाहिए, सर बिल्कुल बाइनरी ऑपरेटर ही है, प्लस तो बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसे मैंने सबसे पहले यहां पे समझाया है कि इस एग्जांपल में कि प्लस साइन बाइनरी ऑपरेटर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन साइन भी यहां पे जो मैंने यूज किया, मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहा हूं, पर ये भी बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये भी दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है, एक नम और एक 3। देयर आर टू ऑपरेंड्स, num is the first operand and 3 is the another operand, so two operands are there। लेकिन मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि we can use these arithmetic operators as unary operands also। अच्छा, इतना तो यहां पे समझ में आ गया कि ये यूनरी ऑपरेटर क्यों है, a प्लस 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 a यूनरी ऑपरेटर क्यों है, क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है। व्हेन आई एम राइटिंग a प्लस प्लस, so this plus plus operator, I mean increment operator, is operating on just one operand। what is that one single operand? It is a, so it has only one operand a। when I'm writing minus minus a also, ये प्रीफिक्स है लेकिन फिर भी ये एक ही ऑपरेंड पर काम कर रहा है, तो ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। इसीलिए ये चीज क्लियर हो गई कि यूनरी ऑपरेटर एक्ट ऑन सिंगल ऑपरेंड्स, और उसके एग्जांपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये क्रिस्टल क्लियर है। बाइनरी ऑपरेटर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन मैंने अभी जो बोला कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर की तरह यूज कैसे करेंगे, अब उस पे आता है। नाउ दिस, लुक एट दिस सेंटेंस, a is equal to a plus 3, a is equal to a plus 3। this can be written as a plus equals to 3। इसका और इसका कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जावा के लिए। मैथ्स में ऐसा लिखोगे, हमारा मैथ्स टीचर तुम्हें 0 दे देगा। ऐसा कभी मैथ्स में देखे हो, a plus equals to 3? Maths teacher will not understand, Java compiler will understand, because this is an understandable code by Java compiler। it is not any error sentence, it is not an error code। तो a is equal to a plus 3 भी करेक्ट है, और इसे सेम इसी चीज को मैं a plus equals to 3 भी लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर मैंने लिखा था num is equal to num into 3, num is equal to num into 3, ये तो एक्सेप्टेबल है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, num into is equal to 3, ये सेम चीज है, और लगा दिया, मतलब ये एग्जैक्टली सेम चीज है, या तो ये या तो वो, दे हैव नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। इफ आई राइट दिस कोड इंस्टेड ऑफ दिस, इट विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, सेम रिजल्ट, 100% सेम। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास है a प्लस, अगर मेरे पास है a इज इक्वल टू a प्लस 3, मैं कैसे इसे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं a लिख रहा हूं, उसके बाद मैं ये ऑपरेटर को लिख रहा हूं, ऑपरेटर को लिख रहा हूं, ऑपरेटर, उसके बाद मैं इक्वल टू साइन लिख रहा हूं, इक्वल टू 3। ये भी काम मैंने यहां पे किया, सबसे पहले मैं वेरिएबल नेम लिखा नम, उसके बाद मैं ऑपरेटर लिखूंगा, ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन है,
उसके बाद इक्वल टू साइन, उसके बाद 3। कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम सेम है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर मैं लिखता हूं m प्लस इज इक्वल टू m प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से देखो। इसका मतलब, इसे मैं अगर कन्वर्ट करूं नॉर्मल वाले ट्रेंड में तो कैसे लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू m प्लस, उसके बाद जो भी यहां पे है m प्लस प्लस। दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली सेम इफ यू सी केयरफुली, कोई डिफरेंस है? दिस एंड दिस कोई डिफरेंस नहीं। कैसे? m इज इक्वल टू m प्लस प्लस को मैंने अभी भी बोला, कैसे बोला था? सबसे पहले लिखेंगे m, उसके बाद ऑपरेटर का साइन देंगे। हमारा ऑपरेटर यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस, उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद उस साइड जो भी लिखा हुआ है m के साथ ऐड किया हुआ है जो भी, तो वो m प्लस प्लस। दैट मीन्स दे आर एग्जैक्टली द कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, सेम। ये तुम्हें लिखना आना चाहिए, ये चीज तुम्हें लिखना आना चाहिए। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इस तरह का, तब और क्लियर होगा। इफ आई हैव c इज इक्वल टू c प्लस a plus b plus c, or let us, it is actually not a Java code, let us write in this way: c is equal to c plus a into b. How do we write it in that way, जहां पे इस तरह के कोड में, how do we convert it? तो क्या है, पहले c लिखेंगे, c उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे प्लस, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद c को छोड़ के जो भी चीजें हैं a into b. That means c plus is equal to a into b. This is exactly same as this. Now this thing needs to be understood very nicely. Okay, so if ever you have a code like this, m into is equal to c plus 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 minus minus c, so इसे नॉर्मल कैसे लिखेंगे? m is equal to, फिर इस चीज को उधर शिफ्ट कर देंगे, m into जो भी है इधर, whatever is there, c plus 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 minus minus c. Now this code and this code are exactly same. ये प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितने सारे एग्जांपल्स मैंने दिया अभी, सबको ध्यान से देखो, सबको प्रैक्टिस करो, then only you will understand. अब मैं इसको देखो, अब मैं यहां पे कितने ऑपरेंड पे काम कर रहा है? ये जो प्लस सिंबल है ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है. This arithmetic operator is operating on only one operand. Therefore, this arithmetic operator here, this plus sign, can be used as an unary operator. Can be used as a unary operator. Okay, generally it is a binary operator. Arithmetic operator को तुमसे पूछ दे arithmetic operator कौन सा operator होता है, तो तुम binary operator ही बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे वो unary operator है. लेकिन मैं बोल रहा हूं उसे unary operator की तरह हम यूज कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, एक्चुअली तो वो बाइनरी ऑपरेटर है. सिमिलरली लुक एट दिस एक्सप्रेशन, num into is equal to 3. So this into sign, multiplication sign, is definitely a binary operator, but we have operated it on one single operand num. सिर्फ num पर एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये 3 पर ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेट नहीं हो रहा है. डोंट थिंक दैट 3 is an operator operand over here. 3 is not the operand on which multiplication sign is operating. So multiplication is operating only on num here. So num is in this code, so num is that one single operand on which this multiplication sign is operating, so it is used as a unary operator. ये तो चीज हो गई. अब बोर्ड्स के क्वेश्चन में आते हैं. इन जो सारी चीजें मैंने बोला अभी, इस पर अब मिले जुले क्वेश्चंस करते हैं. चलो 2018 का क्वेश्चन उठाते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, what is the value of y after evaluating the expression given below? And the expression is this: y plus equals to, देखो y is equal to नहीं है, y plus equals to, मतलब कि उस
स्टाइल में लिखा गया है, जो थोड़ा सा अनकॉमन स्टाइल है, उसे हमें समझना है। y प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई when int y is equal to 8. Okay, very, very simple question. Let us solve this. Also, let us write down the year in which it was asked. 2018. These questions are equally important for both of the classes, 9th and 10th. 9th के बच्चे मत सोचना कि ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है तो मैं अभी नहीं देखूंगा, ये तुम्हारे 9th के एग्जाम में आता है, स्कूल लेवल एग्जाम्स में पूछेंगे टीचर्स, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं 9th और 10th को मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये कोर्स अलग अलग क्लासेस के कोर्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। एक ही क्लास कोर्स को दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट एकेडमिक सेशंस। जिसको 9th का नहीं पता वो 10th नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब चलो, ये जो कोड दिया हुआ है इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ठीक है। y प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। Now let us first convert it into the normal way we do. जैसे अगर दिया हुआ है a प्लस इज इक्वल टू 5, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू इस a प्लस 5, a प्लस को उधर भेज दिया, a प्लस 5, मतलब a इंटू इज इक्वल टू 6 है, तो क्या लिख सकता हूं, a उसके बाद इक्वल टू साइन दो, उसके बाद ये a इंटू और इधर जो भी है 6, तो मैं यही काम करूंगा। यहां y प्लस इक्वल्स टू है तो y इज इक्वल टू इस y प्लस को उधर भेज दूंगा और उसके बाद जो भी है वही y प्लस, उसके बाद ये जो भी चीज है उसको लिख दूंगा। क्या है जो भी में, प्लस प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। मतलब इस y इक्वल्स टू लिखने के बाद मैंने ये y प्लस को यहां सेंड किया और उसके साथ ये जो भी चीज है वो एज इट इज यहां आ गया। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो है। यहां पे देखो, इसमें भी देखो, a इंटू इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू, उसके बाद a इंटू को उधर भेज दिया, उसके बाद 6 था तो 6। अब मुझे लगता है और क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो, y is 8 they have told, so int y is 8 ये दिया हुआ है, तो मेमोरी में y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसका वैल्यू 8 स्टोर है, अभी इनिशियल वैल्यू 8 है। ड्राई रन कर रहे हैं रफ में, तो यहां अब देखो, यहां पे इसका लिखेंगे। अब लिखा हुआ है y प्लस, तो y प्लस तो नॉर्मल, तो मैं लिखूंगा 8 प्लस, क्योंकि y का वैल्यू अभी 8 है, कोई डाउट नहीं है। 8 प्लस 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 वाई है, प्लस प्लस वाई का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीमेंट करो, प्लस प्लस है ना प्रीफिक्स, फिर वाई का लिखो, तो पहले इंक्रीमेंट कर दिया 9 हो गया, फिर मैं लिखा वाई का वैल्यू 9, उसके बाद है प्लस प्लस वाई माइनस माइनस, वाई माइनस माइनस मतलब पहले वाई का वैल्यू जो है उसको लिखो, वाई का वैल्यू क्या है अभी 9 है, 9 लिख दिया, उसके बाद माइनस माइनस है, मेमोरी में ये एक बार डिक्रीमेंट हो गया, 9 से 8 हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया, ये वाला प्लस, एंड देन यू हैव माइनस माइनस वाई, तो पहले माइनस करो फिर लिखो, तो माइनस कर दिया फिर से 7, तो मैंने यहां 7 लिख दिया, ठीक है। तो हमें इसको अब सॉल्व करना है, तो हमारा इसका आंसर आ गया, कितना सिंपल है। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, और इस टॉपिक पर डाउट्स जो थे वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे, बोर्ड्स के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, हम इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर और क्वेश्चन नहीं करते। अब हम मूव करते हैं, मैंने बताया था ना मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर क्या है, उस पर हम आते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हियर, बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें हमने एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो सिंपल हम जानते हैं, वी ऑल नो दिस। व्हाट इज दिस मॉड्यूलस डिवीजन? This I will explain. Okay, suppose you have 4 divided by 2, इसका आउटपुट क्या होगा पता है तुमको? इसका आउटपुट 2 होगा, 4 divided by 2 is 2. Now when you do this division like this, 4 divided by 2, 2 2s are 4, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 0 आया, और तुम्हारा जो क्वोशंट आया वो 2 है, क्वोशंट।
तो हम जब कहते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो भी क्वोशेंट आता है ना, तुम बोलते हो सर वो आंसर होगा। तुम्हारे मैथ्स टीचर ने ऐसे ही सिखाया। अगर मैं लिखता हूं 12 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर तुम बोलोगे सर 4 होगा। क्यों? क्योंकि मैं 12 से जब 3 को डिवाइड करता हूं, 3 4 12 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, तो 4 इज आवर क्वोशेंट, तो इसका तुम बोलते हो सर 4 आंसर है। मतलब क्वोशेंट को तुम आंसर बोलते हो। ये मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है। तो जावा भी इस तरह के जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो इसका आंसर जो क्वोशेंट जो होता है वही इसका आंसर होता है। लेकिन अगर मैं करूं 4 मॉड्यूलस डिवीजन बाय 2, तो इसका आंसर क्वोशेंट नहीं होता, इसका आंसर रिमाइंडर होता है। तो 4 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर 0 होगा। तो मैंने डिवाइड तो किया, लेकिन आउटपुट हमारा क्वोशेंट नहीं है, रिमाइंडर है। सिमिलरली 12 divided by 3 modulus division by 3 will give me 0, because when 12 is divided by 3, remainder is 0. Now tell me what should be the output of this 7 modulus division by 2? Tell me. Yes, इसका आउटपुट 1 होगा, बिकॉज जब हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारा 1 आता है। लेकिन हम 7 नॉर्मल डिवीजन बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, क्वोशेंट। ओके, 3.5 आएगा अगर हम डबल कर रहे हैं, डबल डेटा टाइप यूज किए, और अगर हम इंड डेटा टाइप यूज किए तो 3 आएगा। डेसिमल पार्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस डिवीजन यूज किए हैं तो रिमाइंडर आउटपुट होगा, और नॉर्मल वाला डिवीजन यूज किया तो क्वोशेंट आउटपुट होगा। अब मुझे लगता है ये भी क्लियर है कि इन दोनों डिवीजन साइंस में क्या डिफरेंस है। मैं फिर बोल देता हूं, ये परसेंटेज नहीं है, मैथ्स में होता है, जावा में ये डिवीजन है, जिसे मॉड्यूलस डिवीजन बोलते हैं। नाउ अ वेरी कॉमन आईसीएसई क्वेश्चन दैट कीप्स ऑन कमिंग very frequently. So we are not writing the year because this question has come numerous times. What is it? Write this question. What is the difference between स्लैश, मतलब ये नॉर्मल वाला डिवीजन, एंड मॉड्यूलस डिवीजन? ये आईसीएसई क्वेश्चन है और ये न्यूमरस टाइम्स पूछा गया है, और ये स्कूल लेवल एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। और आईसीएसई वालों का और स्कूल के टीचर्स का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है। तो सिंपली यू राइट डाउन, डिवीजन ऑपरेटर divides two numbers and returns the quotient. रिटर्न्स मतलब, रिटर्न्स का मतलब होता है कि आउटपुट देना, ये टेक्निकल वर्ड है। आउटपुट देना को कहते हैं रिटर्न्स। तो ये स्लैश ऑपरेटर क्या आउटपुट दे रहा है? क्वोशेंट को आउटपुट दे रहा है, इसलिए रिटर्न्स द क्वोशेंट, क्वोशेंट को वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न वर्ड, मैं फिर बोल रहा हूं, एक टेक्निकल वर्ड है, जावा में यूज होता है। रिटर्न का सिंपल मतलब है आउटपुट देता है। मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर, इसे मॉड ऑपरेटर भी बोलते हैं, मॉड ऑपरेटर, ठीक है, मॉड या मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइड्स टू नंबर्स and returns the remainder. एग्जाम्पल भी लिख लेना दोनों का। 7/2 is equal to 3. 7 mod 2 is equal to 1. तुम्हें क्लियर हो गया? क्वोशेंट 3 है जब 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और रिमाइंडर 1 है, इसलिए मॉड में 1 आया। कितना सिंपल क्वेश्चन। Now, with this, I end today's video. We will cover up the next topics and also some ICSE questions based on these topics itself in the coming lectures. All the best. God bless you. Take care.